نواز شریف مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، میرے ساتھیوں، دوستوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ میں نہ جانے کتنے بے روزگار ہوں گے۔ یہ جو یہاں پہ آئے ہیں، جو میں دور تک دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ جلسے میں تو آئے ہیں اور شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میں آج یہاں پہ آ رہا ہوں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے پہلے آنا تھا، لیکن میں آیا ہوں یہاں آج آپ کے پاس بہت دیر کے بعد، اور میں تھوڑا سا نعرے ذرا بند کر دیں۔ نعرے لگائیں گے۔ ایک منٹ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، ادھر بھی گزارش ہے، ان نوجوانوں سے گزارش ہے۔ گزارش سنیں گے میری؟ آپ میری گزارش مانیں گے؟ یہ ہے کہ وقت کم ہے، ہم نے مغرب سے پہلے اپنے اس تقریب کو ختم کرنا ہے، تو بات سن لیں۔ یہ نعرے بازی انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، اینڈ میں کریں گے۔ میں خود پاکستان کا نعرہ لگاؤں گا اور آپ جواب دیں گے۔ ذرا ابھی خاموش تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ مان گئے؟ شکریہ۔ مجھے پتہ ہے کہ خوشاب کے دوست عوام میری بات بہت مانتے ہیں۔ خوشاب والے ہمیشہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں، اور میں خوشاب والوں کو دل کے گہرائیوں سے پیار کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں خوشاب سے MNA منتخب ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کو 90,000 کے لگ بھگ ووٹ دیا ہے۔ میں اس پہ بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن شفقت بلوچ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، تو مجھے بڑا مان ہے خوشاب کے لوگوں پر۔ بلکہ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہباز صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے آنا تھا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے وہاں پر، میں 50 کروڑ روپے کا ایک اسپیشل 50 کروڑ روپے کا خوشاب کے لیے اسپیشل پیکج لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن ابھی جو جذبہ میں نے دیکھا ہے، ابھی آتے ساتھ یہاں پہ میں تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے، جو جذبہ دیکھا، تو میں شہباز شریف صاحب کو اب یہ کہنے لگا ہوں کہ خوشاب کے جذبے سے میں متاثر ہو کے آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ خوشاب کے لیے 50 کروڑ نہیں 100 کروڑ کا اسپیشل پیکج دیا جائے۔ یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اگر خوشاب ہمیں پیار کرتا ہے تو ہم بھی خوشاب کو پیار کرتے ہیں، اور پھر معاملہ یہیں ختم۔ یہ اسپیشل پیکج ہے، اسپیشل پیکج یہ ان تمام ترقیاتی اسکیموں کے علاوہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں یہاں پہ دی ہیں۔ ان تمام اسکیموں کے علاوہ یہ اسپیشل پیکج ہے جو خوشاب کی بہتری کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بے شمار لوگ ہیں، ہمارے بھائی نوجوان جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، ایسے بے شمار نوجوان ہوں گے
जो स्कूल भी नहीं जा सकते, कॉलेजेस में नहीं जा सकते। ऐसे बेशुमार यहां पर वालिद होंगे, वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सकते। आप सब यहां पे मौजूद हैं और आप यहां पर कोई उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप मुझे यहां पे सिर्फ जलसा सुनने के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि आप ये भी सुनने के लिए आए हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के लिए कौन सा प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान की तमाम ये दुश्वारियां, मुश्किलात और गुर्बत और जहालत को खत्म किया जा सके, और किस तरह से इनके घरों में रोशनी के चिराग रोशन किए जा सकें, किस तरह के इनके घरों में खुशहाली आए, किस तरह से ये बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनने के बजाय नए कपड़े पहन सकें, नया जूता पहन सकें, किस तरह से इनको बाइज्जत रोजगार मिल सके, किस तरह से इनकी गुर्बत का खात्मा किया जा सके, और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये लोड शेडिंग का अजाब खत्म किया जा सके, किस तरह से महंगाई का खात्मा किया जा सके। ये सब कुछ आपके दिलों में है, मैं जानता हूं, मैं भी समझता हूं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है, बड़े गौर से बात सुनने वाली है। नवाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के लिए अपना दिन रात काम कर रहा था। आप जानते हैं कि पहला दौर हमारा 2 साल का दौर था, दूसरा दौर 2.5 साल का दौर था। आज पीपल्स पार्टी को 15वां साल जा रहा है, 15वां। आप इनके चार अदवार हैं, 4 दौर, ये चौथा दौर जा रहा है। 15 साल से पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत की है। हमें तो सिर्फ 2 साल और 2.5 साल, 4.5 साल मिले, 4.5 साल, और 4.5 सालों में हमने पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख दी थी। हमने पाकिस्तान के लिए वो सड़कें बनाई, मोटरवेज बनाए, तरक्याती काम किए, और दूसरे दौर में हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हमने दुनिया को बताया हम आए, हमने काम किया। क्या हक पहुंचता है मुझे ये बताओ। आज मैं यही सोचता रहता हूं, ये महरूम बच्चे, ये बेचारे नौजवान जिनके चेहरों पे आज खुशियां होनी चाहिए थी, उनके चेहरों पे दुख और अफसोस और गम है। मैं सोचता रहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो नवाज शरीफ पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपना रात दिन एक कर रहा था, उसकी सारी पार्टी और तंजीम, उसकी सारी हुकूमत दिन रात काम कर रही थी। क्या हक पहुंचता है किसी जर्नैल को कि उसको पकड़ के उठा के उसकी हुकूमत को खत्म करके उसको जेलों में डाल दे, उसको मुल्क बदर कर दे। और आज पाकिस्तान में मेरी जिंदगी के 10 से 12 साल मेरी जिंदगी के उस शख्स ने जाया करवाए। अगर वही 10-12 साल आपकी खिदमत करता रहता, आज इन नौजवानों की तकदीर कुछ और होती, आज पाकिस्तान की तकदीर कुछ और होती। अल्लाह के फजलो करम से वो दिन थे कि लोग आगे आगे थे, रोजगार पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाग रहा था। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे, कहने के जनाब आजकल हमें अल्लाह के फजलो करम से जो है वो अगर एक जगह नौकरी छूटती है तो दूसरी जगह मिलती है, और फिर पाकिस्तान में खुशहाली आ रही थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था इस खित्ते में, इस सारे इलाके में, सारे खित्ते में पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क था, नंबर 1, और हिंदुस्तान भी पाकिस्तान से पीछे था। ऐसे नहीं, ऐसे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बस में बैठ के पाकिस्तान नहीं आया था। उसने देखा कि पाकिस्तान भाई बराबर की चोट है, अगर हमने 5 धमाके किए, इसने 6 धमाकों से जवाब दिया है। ऐसे कौन आता है, ऐसे कौन आता है? और हम कोई फकीर नहीं थे, हम कोई भिखारी नहीं थे, हम किसी के आगे झोली नहीं फैला रहे थे, हम किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे थे। अगर सड़कें बनाई हैं, मोटरवे बनाए हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से अपनी जेब से बनाए हैं, उस पैसे से बनाए जो खुदा ने हमें दिया था, किसी से मांग कर नहीं बनाया हमने। अगर एटमी धमाका किया है तो वो को मांग कर नहीं किया,
اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں یہ بات، نہیں بولے نہیں، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ابھی ایٹمی دھماکے ہم نے کرنے تھے، ابھی کیے نہیں تھے تو کلنٹن صاحب اور دنیا کے وزیر اعظم، برطانیہ کے وزیر اعظم، سب کے فون آ رہے تھے. مجھے امریکی صدر نے کہا کہ جناب ہم آپ کو $5 ارب آپ کو پاکستان کو امداد دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی مدد کرنے کے تیار ہے. $5 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اس میں جو قومیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. ہم نے کہا 5 ارب چھوڑ کے اگر آپ مجھے 25 ارب بھی دیں تو میں پاکستان کا وہ باضمیر بنتے ہوں. پاکستان کا ضمیر بیچنے والا بندہ میں نہیں ہوں. یہ کام یہاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا، فرض جو تھا وہ ادا کیا، ورنہ ہم بھی $5 ارب لے کے ہم جو ہے وہ نہ کرتے، آج دنیا میں ہماری کوئی عزت نہ ہوتی. آج یہ گئے ہوئے ہیں، اب دیکھیں پاکستان کا کیا حشر ہے. لوڈ شیڈنگ نے عوام کی جان جو ہے وہ عذاب میں ڈالتی ہے. کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ مجھے بتایا جائے ذرا، کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہاں؟ ٹھہرو میری بات سنو. نہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا. میں جو دیکھو سنیں، میں کہوں گا کہ کیا 10 گھنٹے ہوتی تو پھر آپ میری بات سنیں پہلے، ابھی نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ 10 گھنٹے ہوتی ہے تو میرے جو اگر سمجھتے ہیں کہ 10 گھنٹے ہوتی تو وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو سمجھتے ہیں کہ 10 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں. 10 گھنٹے ہوتی ہے. اب میں اور آگے آتا ہوں. 15 گھنٹے ہوتی ہے، 20 گھنٹے ہوتی ہے، کیا حشر کر دیا ہے انہوں نے ہمارے ملک کا. بھائی ایک بات سنو، جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو کبھی 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی؟ کبھی جب نواز شریف وزیر اعظم تھا میری بہنوں بتاؤ، جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو کبھی لوڈ شیڈنگ ہو؟ باہر والے بھی بتائیں مجھے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو کبھی آدھا گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی؟ یہ ہے فرق، یہ فرق ہے. میں تو کل پرسوں سندھ میں تھا، سندھ میں نے کہا سندھی بھائیوں مجھے بتاؤ، سندھی بھائیوں بتاؤ، یہ سندھ سے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب صدر گرامی قدر. آج سندھ کو کیا دیا انہوں نے؟ سندھ والے بھی بیچارے 48 ڈگری میں وہاں پہ میرے ساتھ وہاں پر جلسے میں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہاں پر بھی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک بات سن لو، تم نے میرے ملک کا یہ حشر کیا ہے. یہ عوام بھی جو ان کا غصہ ان کے دلوں کے اندر ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کل شہباز شریف صاحب نے اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کے احتجاج کیا ہے. اگر آپ نے 2-4 دنوں میں معاملات کو ٹھیک نہ کیے، لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی، تو پھر نواز شریف بھی ان احتجاج کرنے والوں میں سڑکوں کے ساتھ شامل ہوگا. خوش آپ کے بھائیوں بہنوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، کئی دفعہ مجھے اس بات کا بڑا شدت سے خیال آتا ہے، بڑی شدت سے خیال آتا ہے مجھے کئی مرتبہ کہ قوم کے بھی 12 سال ضائع کر دیے، میرے بھی 12 سال ضائع کر دیے، اور میں 12 سال اپنا
खून पसीना बहा था इस कौम की तामीर के लिए, मुझे उससे महरूम कर दिया गया, पाकिस्तान को उससे महरूम किया गया। और आज पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो रुस्वा हो रहा है। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम जो है वो कितनी दुख की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज ना अमीर को चैन है, ना गरीब को चैन है, ना किसान को चैन है, किसी जिम्मेदार को चैन है, ना मजदूर को चैन है, ना मालिक को चैन है। आज हर तरफ अफरा तफरी है, आज हर तरफ जो है इस्तराब है, बेचैनी है। ये पाकिस्तान 60 सालों के बाद, 65 सालों के बाद ये पाकिस्तान का नक्शा हमने देखना था। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और मैं ये पाकिस्तान का आप देखें, आज हिंदुस्तान देखें, हिंदुस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और हमारी तरक्की का जो शरह है वो 2.5% है। हिंदुस्तान की तरक्की की फीसद जो है वो 8% के करीब चली गई है। कितना फर्क है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम था तो हमारा रुपया हिंदुस्तान के रुपए से ज्यादा मजबूत होता था। आज हिंदुस्तान का रुपया पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन हमने भी कसम खाई है, मैंने भी कसम खाई है, जब तक इंशाअल्लाह इस कौम की तकदीर बदल नहीं जाती, इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से कभी नहीं बैठूंगा। मैं साथ साथ चलूंगा इस कौम के। आपसे आपको जो आप जानते हैं, मैं आज आपकी नब्ज पे भी हाथ रखने आया हूं। आज मैं एक डॉक्टर की तरह से आपके पास आया हूं। मुझे सही जवाब देना, सही जवाब दोगे ना मुझे? मैं यानी देखें, इतना तो मान है मुझे आपको और आपको मुझ पर कि मैं भी आपसे सच बोलूंगा, आप भी मुझसे सच बोलेंगे और सही जवाब देना। आज देखें, ये जो हुकूमत कर रही है, मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया इस हुकूमत ने। बड़े ख्वाब लेके आए थे 2008 में बड़े, और उसके बाद हमारे हाथ बंधे हुए थे, उसके बावजूद हम मैदान में कूदे। इन्होंने हाथ तो मेरे बांध दिए थे। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ को भी हथकड़ियां लगाई थी। आज से 10 साल पहले मेरे हाथों को भी हथकड़ियां लगी थी और वो मैंने आपकी खातिर बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हाथ बांधे हुए थे, मैदान में उतरे, हमने ये इलेक्शन जीते, मान लिया जीत गए, भाई मान लिया। मैं नहीं उसका रोना रोता कि जनाब मेरे तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, शहबाज शरीफ के मुस्तरद हो गए थे और यहां मुशर्रफ ऊपर छाया हुआ था और सारी जिली नाज़मीन मुशर्रफ के थे, सारा टोला मुशर्रफ का था, हुकूमतें सारी मुशर्रफ की थी। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो दूसरी पोजीशन दी मुल्क के अंदर। पहली पोजीशन पीपल्स पार्टी को मिली, हमें दूसरी मिली। मैंने बड़े फराख दिली के साथ मैंने कहा कि आपको पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को कहा आप आगे लगे, हम आपके पीछे चलेंगे, पाकिस्तान की तामीर के लिए पीछे चलेंगे आपके। और खुदा की कसम मेरे दिल में ये बात थी, अगर ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते हैं, इनकी गुर्बत को खत्म करते हैं, बेरोजगारी का खात्मा करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो यहां पे महंगाई का खात्मा करते हैं, मैं दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन के ऊपर भी मैं इनके साथ चलने को तैयार हूं। मैं कहता हूं कि अगर उसकी बिना पे, अपनी कारकर्दगी की बिना पे ये अगला इलेक्शन भी जीतते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ता है, पाकिस्तानी कौम खुशहाल होती है, मुझे इक्तदार से कोई गरज नहीं है। मैं पाकिस्तान की खुशहाली चाहता हूं, इस मुल्क की तरक्की चाहता हूं, इस मुल्क को बढ़ता फूलता देखना चाहता हूं। ये मेरा मंशूर था, ये मेरा मंशूर। भाई पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है, सुने, पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो फिर भाई कोई भी है जो कर रहा है उसको, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इन्होंने मेरे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ, और फिर कहते हैं जनाब ये वादे हैं, कोई ये वो नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है, कुरान और हदीस नहीं। ये बात सुनो, क्या बात करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुनकर। मैंने कहा नहीं यार, इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और आज वही मेरी सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं,
सारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो लॉन्ग मार्च में मेरे साथ चले थे। हमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। हमें पाकिस्तान अजीज है, मुझे मुल्क अजीज है, ये 18 करोड़ अवाम अजीज हैं। इनके लिए मैंने अपनी जिंदगी को यहां पर हथेली पर रखकर ये सारा रिस्क लेकर हम लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे। जो मेरे साथ निकले थे मैं उनको सलूट करता हूं, उनको मैं आज भी खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन उन्होंने आज फिर और आपकी ताकत के बलबूते पे अल्लाह ताला ने लॉन्ग मार्च को कामयाब किया और जज बहाल हुए। आज फिर उन्होंने वही कैफियत पैदा कर दी है मुल्क में। आज वो फैसले दे रहे हैं और ये उस पर अमल नहीं करते। जरा एक मिसाल देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट अगर या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी कत्ल के मुजरम को अगर फांसी की सजा देती है तो क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करती है या नहीं करती? मुजरम गिरफ्तार होता है या नहीं होता? वो गिरफ्तार होता है, अपील करता है हाई कोर्ट में, और अपील में अगर वो मुजरम को छोड़ दे तो और बात है, या मुजरम को जमानत दे दे तो मुजरम जो है वो जमानत से बाहर आ जाता है। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। एक सेकंड। लिहाजा हम पाकिस्तान के अंदर ये लाकानूनियत, इसको हम कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में एनार्की को किसी कीमत पे हम नहीं होने देंगे, हर तरह से रोकेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस तरफ मैं जरूर आऊंगा कि इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून जो है वो जो भी फैसला करेगी, मैं खुशाब के अवाम से ये तवक्को करता हूं कि वो उस फैसले पे इंशाअल्लाह लब्बैक कहेंगे, नवाज शरीफ के कदम से कदम मिला के चलेंगे। और दूसरी बात जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था, अच्छा मुझे ये इसके एक मिनट, अभी चलूं, अभी चलूं, एक मिनट, ये जरा इन सवालों का जवाब दें और सब दें भाई, सब दें। आप यकीन करें हम वो लोग हैं, आप जानते हैं, शहबाज शरीफ को भी जानते हैं, ये चौधरी निसार साहब भी जानते हैं, आपकी लीडरशिप भी यहां पे है। हम वो लोग हैं जो किसी कीमत पे कोई हमें अल्लाह के फजल करम से करप्ट हुकूमत नहीं कह सकता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अल्लाह के फजल से हमेशा ईमानदारी के साथ उसने मामलात को चलाया है और ये सब दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है। 1 रुपए की करप्शन हमने कभी नहीं की अल्लाह के फजल से और ना कभी करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर मुझे जरा बताएं कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है, जो अभी मैं एक कोर्ट की बात की है, मैं कोर्ट की बात को अब एक तरफ कर रहा हूं। सबसे बड़ा मसला जो है वो मैं नाम लूंगा, आप हाथ खड़ा कर, जैसे अभी आपने बताया था हाथ खड़ा करके, इसी तरह बताएंगे। मैं जरा दोबारा पूछना चाहता हूं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला अवाम का अगर बेरोजगारी है तो उस पर हाथ उठाएं।